बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी MTH 251 में लेक्चर नंबर 29 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्ट सबसेट्स को स्टडी करेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और रिलेटेड थ्योरम को अटेम्प्ट करेंगे। फिर हम बेसिक ओपन कवर्स से रिलेटेड कॉम्पैक्ट स्पेसेस पर रिजल्ट को प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले कॉम्पैक्ट सेट्स एंड कॉम्पैक्ट स्पेसेस की स्टडी को करते आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर a space X is compact if for every open covering of X there exists a finite subclass of open sets which also covers the space. Dear students, आज हम सब स्पेसेस के ऊपर फर्स्ट थ्योरम को ट्राई करते हैं। Let Y be a subspace of X, then Y is compact if and only if every covering of Y by sets open in X contains a finite subcollection covering Y. So dear students, this theorem is related to the subspace compactness, और subspace compact होगी अगर उसकी open covering with respect to the ground space लें और finite subcollection exist करती हो जो कि again Y को कवर करती हो। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि Y इज कॉम्पैक्ट, इट मीन्स कि Y इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन टोपोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम सब स्पेस की कॉम्पैक्टनेस को स्टडी करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं विद द कवरिंग्स ऑफ द with the covering of open sets by the ground space. Okay, dear students, अगर इस थ्योरम में आप देखें तो this is if and only if statement. If and only if statement में dear students ये दिया हुआ है कि Y is compact if and only if every covering of Y by sets open in X contains a finite subcollection covering Y. So dear students, here it is given that Y is compact if and only if covering of Y say covering of Y by sets open in X U alpha, where U alpha open in X, there exist finite say U alpha 1, U alpha 2 and U alpha n belonging to such that what this Y is also contained in union of I is equal to 1 to n U alpha I. Right, dear students? Dear students, remember this is compact. It means compact with respect to its own topology, with respect to relative topology. Y is compact means Y ta Y. This is compact. जब हम कहते हैं कि Y ta Y is compact, it means compact with respect to its own topology. Its own topology का मतलब यह है कि जो इसकी covering या finite sub covering है वो open sets हैं with respect to relative topology, that is with respect to ta Y. So dear students, this is a very minute difference कि हमारे पास space compact है, इसका मतलब है compact है तो this open covering and finite sub covering are with रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव टोपोलॉजी। और वो कहता ये है कि अगर ये कॉम्पैक्ट है तो फिर हम इसकी ओपन कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पेस लें तो तब भी फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती है। एंड कन्वर्सली अगर हमारे पास हर ओपन कवरिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब कवरिंग ग्राउंड स्पेस ओपन सेट्स फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती हो
तो फिर भी स्पेस हमारे पास या सब स्पेस हमारे पास कॉम्पैक्ट होगी। सो जिस वक्त हम इस y को कॉम्पैक्ट लेंगे और कॉम्पैक्टनेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेटिव टोपोलॉजी लेंगे, तो हम प्रूव करेंगे कि फिर हर ओपन कवरिंग ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ओपन सेट्स इन द ग्राउंड स्पेस देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवरिंग, right dear students, and conversely. So dear students, let's go for the proof. So इसके प्रूफ में हम सबसे पहले assume कर लेते हैं let y ta y the relative topology be a compact subspace of this x and ta. Then dear students, हमें ये मालूम है कि ta y, because it is a relative topology, y intersection u such that u belongs to ता, इसके ओपन सेट्स की फॉर्मेशन जो है वो इस किस्म की होगी, राइट। जो भी इसका ओपन सेट होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। तो व्हाट वी हैव अस्यूम्ड दैट y इज compact subspace of x. What we will do, we will prove that every covering of y by sets open in x, there exists a finite subcollection which also covers this space y. So dear students, y is compact if and only if every covering of y by sets open in x contains a finite subcollection. For this, let's assume that, say V alpha belonging the indexing set be a covering of y by sets open in x, right? That is, it means this y is contained in union of alpha belonging I and V alpha. Remember, V alpha belongs to ta, right? So this implies y intersection y, if I take the intersection of this y on both the sides, then union of alpha belongs to I, V alpha, and if I take the intersection with y, then this by De Morgan law can be written as union of alpha belongs to I and V alpha intersection y. Okay dear students, then you know this ultimately will imply that y intersection y is obviously equal to y, and then this becomes equal to union of alpha belongs to I, and this is V alpha इंटरसेक्शन y. डियर स्टूडेंट्स, अब रिलेशन इक्वल का हो गया है। क्यों ये रिलेशन इक्वल का हो गया है? इसलिए कि जिस वक्त हमने दोनों साइड का y के साथ इंटरसेक्शन ले लिया है, तो अब हमारे पास राइट साइड पर जो कलेक्शन रही है, दैट इज नॉट आउटसाइड y, दैट इज नॉट बियॉन्ड y। आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ v अल्फा विद y, तो रिजल्टेंट जो सेट है वो कंटेन्ड इन y है। सो ये सारे के सारे अब y के इक्वल हो जाएंगे, वेयर यू रिमेंबर v अल्फा इंटरसेक्शन y belongs to what? Ta y. So they are open in the subspace topology. Okay, it is this is by the definition they are open in the relative topology, right? So this forms the covering. This implies that this v alpha intersection y such that alpha belongs to I is an open covering of y by sets open in y. Okay, these sets are open in y, right? Since we are given
y is compact. So by definition, this implies every open covering has finite subcovering. So this implies there exists a finite subclass or finite collection. Okay, let's say V alpha 1 intersection y, V alpha 2 intersection y, and so on, and V alpha n intersection y. Okay, such that what will happen, that this y will be equal to union of I is equal to 1 to n V alpha I intersection y. Okay, dear students, so this is obviously contained in union of I is equal to 1 to n V alpha I. Okay, so this implies that this y is contained in union of I is equal to 1 to n V alpha I. So initially हमने V alphas collection of open sets from the ground space X ली थी, और हमने एक finite सब collection ढूंढ ली है V alpha 1, V alpha 2, V alpha n, जिनकी union again y को cover करती है. So this completes the first part of the proof. Okay, this completes the first part of the proof that for every cover of y by open sets of X there exists a finite subcollection which also covers y. And let's go for the converse proof. Conversely, condition holds. We prove that y is compact. Dear students, आपको पता है कि जब हम ये कहते हैं कि y is compact, it means y is compact with respect to relative topology. Okay, with respect to its own topology. Okay, condition क्या होल्ड करती है कि every covering of y by sets open in X there exists a finite subcollection which also covers y. ओके हमने प्रूव ये करना है कि y इज कॉम्पैक्ट. जब हम ये कहते हैं कि y इज कॉम्पैक्ट, इट मींस y इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेटिव टोपोलॉजी. चूंकि इस सिचुएशन में हमने y को सब स्पेस ऑफ x लिया हुआ है, राइट. तो जब कहते हैं कि y इज कॉम्पैक्ट, इट मींस y इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टोपोलॉजी. एंड रिलेटिव टोपोलॉजी आप खूब जानते हैं कि टा y में जो भी सेट ओपन होगा, ठीक है, एवरी सेट ओपन इन टा y, ठीक है, बिलफर्स is of the form u intersection y. Okay, where u कहाँ पर होगा, u will be open in ta, right dear students. Ta is the topology on the ground set, right. So we prove that y is compact. Dear students, जब हम y को compact prove करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम y की open covering with respect to its relative topology लेंगे और उसकी finite सब covering find करने की कोशिश करेंगे. So dear student, मैं let करता हूँ कि let G alpha such that alpha belongs to I be a covering of y by sets open in y, right. So this implies
So this implies, number one, this y is contained in union of alpha belonging I G alpha, right? जहाँ पर G alpha हमें मालूम है कि this belongs to the subspace topology. Okay, then by definition each G alpha, this implies G alpha will be equal to y intersection V alpha, where V alpha belongs to what? Ta, for each alpha belonging I. ओके डियर स्टूडेंट्स, सब स्पेस टोपोलॉजी में जो भी ओपन सेट लेंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी में, जैसा कि मैंने इधर राइट साइड पे आपको बताया, सब स्पेस टोपोलॉजी में जो भी ओपन सेट लेंगे वो ओपन सेट ग्राउंड स्पेस में किसी ओपन सेट का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेने से मिलेगा. जी अल्फा अगर सब स्पेस में ओपन है तो फिर ये जी अल्फा बराबर होगा वाई इंटरसेक्शन वी अल्फा के, वेयर वी अल्फा विल बी ओपन इन द ग्राउंड स्पेस टोपोलॉजी. ग्राउंड स्पेस जो है वो एक्स है. ओके, उस पर टोपोलॉजी जो डिफाइन की है वो टा डिफाइन की हुई है हमने. सो वी अल्फा टा को बिलोंग करेगा और वी अल्फा इंटरसेक्शन वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू जी अल्फा दैट इज ओपन इन द ग्राउंड स्पेस. सो वाई already contained in union alpha belongs to I G alpha है, तो this implies this y will be subset of union of alpha belongs to I y intersection V alpha, and this is obviously contained in union of alpha belongs to I V alpha, where we know V alpha are open in X. Okay, so this shows that V alpha such that alpha belongs to I is a covering of Y by sets open in X. And what is the hypothesis? Hypothesis ये है कि every covering of Y by sets open in X there exists a finite subcollection which also covers Y. So by hypothesis, dear students, आप रिकॉल करें what are the hypotheses कि every covering of Y by sets open in X there exists a finite subcollection which also covers Y. So by hypothesis there exists a finite subcollection से, क्या कहें हम उस सब कलेक्शन को, से V1, V2, V3 एंड Vn हमने रीनंबरिंग कर ली है. वी अल्फा 1, वी अल्फा 1, वी अल्फा 2, वी अल्फा 3, वी अल्फा की हमने रीनंबरिंग कर ली है. दैट इज से जो हमारे सूटेबल नंबर थे जिन सब कलेक्शन ने उसको कवर किया उनको हमने V1, V2, V3, Vn का नाम दे दिया. Vn सच दैट व्हाट, चूंकि फाइनाइट सब कलेक्शन एग्जिस्ट करती है जो कि उसको कवर करती है, और वो फाइनाइट सब कलेक्शन हम अस्यूम कर रहे हैं कि V1, V2, V3, Vn है, तो दिस इम्प्लाइज सच दैट दिस Y इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ I is equal to 1 to n Vi. Okay, where Vi belongs to टा. तो हाइपोथेसिस ने ये बताया कि जिस वक्त हमारे पास कोई भी कवरिंग ऑफ वाई बाई ओपन सेट्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शन विच आल्सो कवर्स वाई. तो ये फाइनाइट सब कलेक्शन है जिसने वाई को कवर किया. सो दिस इम्प्लाइज वाई इज intersection Y is equal to Y intersection this union of
I is equal to 1 to n vi, and this gives actually union of I is equal to 1 to n y intersection vi. Right dear students, right dear students, डी मॉर्गन लॉ को हमने अप्लाई किया है, यूनियन वेंट आउटसाइड और इंटरसेक्शन इनसाइड में आ गया डी मॉर्गन लॉ से. नाउ वाई इंटरसेक्शन वी आई इज बाय डेफिनेशन जी आई, सो यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n जी आई, वेयर जी आई is equal to y intersection vi. So this gi is open in what? In the relative topology tau y, because vi जो है वो open in tau है. Right dear students, so हमने ओरिजिनल कलेक्शन जी अल्फा कंसीडर की थी और हमने फाइनाइट सब कलेक्शन फाइंड कर लिया है जिसकी यूनियन वापस इस y को कवर कर रही है. तो दिस इम्प्लाइज y is compact subspace. Okay, so this completes the proof. Right dear students, so let's try let's discuss a new definition. This is called finite intersection property. Finite intersection property. Dear students, let's define. Let fi, I belongs to I, be a class of subsets of a space X. Space X means it's a topological space X with some topology tau. इस टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने सबसेट्स की एक कलेक्शन ले ली है. I belongs to the indexing set, may be finite, may not be finite, और इस क्लास का नाम हमने कैपिटल F के साथ रख दिया है कि F is the collection of subsets Fi, I belonging I be a class of subsets of X. Then what dear students? Then F is said to have a finite intersection property. फिर इस set F की, which is set of sets, F is said to have, this class of subsets is said to have finite intersection property. हम कहेंगे कि इस set F की finite intersection property है अगर if every finite subclass Fi1, Fi2, Fin of Fi has a non-empty intersection, right? So dear students, यहाँ पे हमारे पास collection of subsets of X है. ये collection finite है या infinite है? हम कहेंगे कि इस collection की finite intersection property है अगर so this is conditional statement, it has finite intersection property provided if every finite subclass, every जो भी इसकी finite subclass लें, अगर ये infinite class है, class of infinite many subsets of X उस सूरत में, और अगर finite many subsets of X उस सूरत में जो भी finite subclass इसकी लें Fi1, Fi2, Fin of Fi, तो अगर वो intersection non-empty हो उन sets के दरमियान, तो फिर ओरिजिनल क्लास ऑफ सेट्स जो है दैट इज सेट टू हैव ए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. ओरिजिनल क्लास की फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी अगर इसकी हर सब कलेक्शन के आपस में इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आ जाएं. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम कहते हैं कि दिस एफ हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. इसको हम शॉर्टली राइट डाउन करते हैं एफ आई पी से, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. ओके, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी शॉर्टली एफ आई पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास, फाइनाइट इंटरसेक्शन एवरी फाइनाइट सब क्लास हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन. ओके, देन एफ इज सेड टू हैव ए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स.
x is equal to r with the usual topology. Okay, with the usual topology होगी. Okay, this is a real line. So this is a real line. Correct. हम इसके ऊपर open sets ले रहे हैं. Here it is 0. This is minus infinity. This is infinity. So हमने इसका पहला सेट जो है वो 0 to minus infinity ले लिया. 0 शामिल नहीं है and it goes up to minus infinity. Right? फिर हमने इसका एक सेट ले लिया -1 to, so this is -1 और this -1 is not included and this goes up to minus infinity. Okay, हमने और सेट ले लिया, this is -2 और फिर -2 to minus infinity and so on. Here it is -3 and this -3 to minus infinity. और फिर इस साइड पर हम क्या ले रहे हैं, this is minus infinity to 1. Okay, here it will be equal to 1. So minus infinity to 1. There will be 2 minus infinity to two, and there is there is 3 and minus infinity to and so on. Okay, so we have infinite collection of subsets of this R. इस X के infinite subsets की collection है. Dear students, इसमें से जो भी मैं finite sub collection लेता हूँ, for example minus infinity to -3 intersection minus infinity to -2. अगर मैं ये इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेता हूँ, इन दो की, ओके, दिस इज minus infinity to -3, दिस इज -3, यू नो, एंड दिस इज -2. इन दो की जब इंटरसेक्शन लूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, minus infinity to -3, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 5. करेक्ट. लिहाजा इनमें से कोई भी सब क्लास में जब लेता हूं उनकी इंटरसेक्शन मेरे पास नॉन एम्प्टी आएगी. एवरी सब क्लास हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन. एवरी सब क्लास हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन. ओके, इस कलेक्शन में जो भी सब क्लास लेते हैं उसकी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगी. चूंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो जितने सेट्स हमने डिपिक्ट किए हैं वो सारे के सारे ओवरलैपिंग हैं, अगर जो डिपिक्ट किए हुए हैं इनमें से सबका मैं इंटरसेक्शन लूं तो ये पिक्चर बताती है द रिजल्ट विल बी इक्वल टू -∞ to -3. चूंकि -∞ to -3 इन सब में शामिल है, राइट, इट इज ए कॉमन पार्ट ऑफ ऑल दीज सेट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज कि फिर ये जो हमें क्लास f ऑफ सबसेट्स ऑफ x दी हुई है, दिस क्लास f हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी. ओके, किसी भी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ x की फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है अगर उसकी एवरी फाइनाइट सब क्लास
has non-empty intersection, right dear student? So this class of subsets of X has finite intersection property. So is a class of open intervals, then F has a finite intersection property, dear student, as we have discussed. Let's consider the next example. Let X is equal to R, and let's consider the collection of sets 0, 1, 0, 1 by 2, 0, 1 by 3. Okay, let's depict it on the real line. Minus infinity, infinity. Suppose here we have 0, and suppose here we have 1. The first set is 0 open 1. Okay, so this is 0 open, and 1 is also open. So this is the first set, 0 open and 1 is open. Okay, the next set is 1 by 2. It will be here somewhere. Okay, 0 and 1 by 2. So 1 by 2 open and 0 open. So this is the next set. Then we have 1 by 4. Here there will be some 1 by 4. So dear students, this is the set 0, 1 by 4. Then this indicates then there will be 1 by 8. Okay, and here we have okay dear students, and then 1 by 16, and then 1 by 32, and 1 by 64, and so on and so on and so on, and still going on. तो dear students, इनमें से जितने सेट्स डिपिक्ट किए हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, खूब जानते हैं कि इसमें ये पार्ट सब में कॉमन आता जा रहा है, राइट? इन तमाम के इंटरसेक्शन में इस वक्त जो डिपिक्ट किए हुए हैं 0, 1 by 8 will be their answer. So 0, 1 intersection 0, 1 by 2 intersection 0, 1 by 4 intersection 0, 1 by 8. So this will be equal to 0, 1 by 8. Okay dear students, which is not equal to 5. Similarly dear students, अगर मैं 0, 1 by 2 और 0, 1 by 8 intersection 0, 1 by 16 ले लेता हूँ, the answer will be equal to 0 and 1 by 16, which is again not equal to 5. Okay, and so on and so on. So this implies this F has finite intersection property, right dear students? This F has finite intersection property. So let's look. Then F has a finite intersection property as we have discussed. Note, remember that, so this is an important thing. Remember that every class of closed sets with finite intersection property has a non-empty intersection, is equivalent to every class of closed sets with empty intersection has a finite subclass with empty intersection. Dear students, this is an important statement. We have to prove the theorem, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंस को अंडरस्टैंड कर सकें. हमारे पास क्लास ऑफ क्लोज्ड सेट्स with finite intersection property. Okay, with finite intersection property has non-empty intersection, has non-empty intersection. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लास ऑफ क्लोज सेट्स हो, बिलफर्ज मेरे पास एक क्लोज सेट है F1, दूसरा क्लोज सेट है F2, तीसरा क्लोज सेट है F3 and so on, and Fn
and still going on. So this is say class of closed set, मैं इसको F से लिख लेता हूँ. This is say class of closed sets with finite intersection property. ओके, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का इंटरसेक्शन में लेता हूं वो नॉन एम्प्टी आता है. फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ओके, नॉन एम्प्टी आता है. तो वो कहता है हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन. क्लास ऑफ क्लोज सेट्स हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन अगर इसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो. डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट, every class of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection. किसकी non-empty intersection? Class of closed sets की. तो ये बताता है कि अगर हमारे पास class of closed sets हो जिसकी finite intersection property है तो then ये जो total class है intersection alpha belongs to I f alpha, इस total class की intersection भी non-empty होगी. So this is स्टेटमेंट जो हमें बता रही है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस पहली स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पहले इस स्टेटमेंट की समझ आए और फिर हम इसकी इक्विवेलेंस की बात करें. तो डियर स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो हमारे पास क्लास ऑफ क्लोज सेट्स है अगर इसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है जिसके मीनिंग ये है कि इसके जो भी फाइनाइट सब कलेक्शन लें उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, तो फिर ये स्टेटमेंट कहती है कि फिर टोटल क्लास की इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी. और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स, बिलफर्ज वही क्लास ऑफ क्लोज सेट जो है हमारे पास F1, F2, F3 so on, somewhere Fn and still going on, class of closed sets. अच्छा, every class of closed sets with empty intersection. अब क्या है, इस क्लास का empty intersection है. गोया के intersection alpha belongs to I, f alpha हमारे पास empty है. ओके, with empty intersection हैज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन. तो फिर ये इम्प्लाई करता है कि फिर इसकी एग्जिस्ट करेगी एक फाइनाइट सब क्लास I इज इक्वल टू 1 to n fi जिसका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा. ओके, सो ये 1 and 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट है. ओके ओके ओके, तो अगेन लुक, 1 में ये कहा गया है कि हमारे पास क्लास ऑफ क्लोज सेट्स है अगर उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो फिर उसकी टोटल क्लास भी नॉन एम्प्टी होगी. और सेकंड स्टेट में कहा गया है कि हमारे पास क्लास ऑफ क्लोज सेट्स है अगर उसकी टोटल क्लास एम्प्टी है तो फिर उसकी फाइनाइट सब क्लास है एग्जिस्ट करेगी जो कि एम्प्टी होगी. ओके, तो अगर हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है यानी फाइनाइट सब क्लास नॉन एम्प्टी है तो टोटल क्लास भी नॉन एम्प्टी होगी. यहाँ पर हम फाइनाइट सब क्लास से चलते हैं और टोटल क्लास पे जाते हैं. अगर फाइनाइट नॉन एम्प्टी है तो टोटल नॉन एम्प्टी होगी और अगर टोटल एम्प्टी है तो फिर फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी जो कि एम्प्टी होगी. ओके डियर स्टूडेंट, विद दिस अंडरस्टैंडिंग ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं. अगर हमें स्टेटमेंट 1 दी हुई है तो हम स्टेटमेंट 2 को यूज कर सकते हैं और अगर हमें स्टेटमेंट 2 दी हुई हो तो हम स्टेटमेंट 1 को यूज कर सकते हैं. गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द थ्योरम. दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपैक्टनेस. ओके, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट इन स्पेस. कौन कौन सी चीजें इक्विवेलेंट हैं? Number 1, X is compact. Number 2, every class of closed sets with empty intersection has a finite subclass with empty intersection. Every class of closed sets with empty intersection has a finite subclass with empty intersection. Okay dear students, so these two statements are equivalent.
अगर कॉम्पैक्ट है तो एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, एंड कन्वर्सली अगर एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन, देन द स्पेस इज कॉम्पैक्ट. लेट्स गो फॉर द प्रूफ, डियर स्टूडेंट्स. प्रूफ. सो फर्स्ट स्टेज पर चूंकि इक्विवेलेंट है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट एक लेक्चर में, और जब हम ये कहते हैं कि टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट तो इट मींस के देयर इज इफ एंड ओनली इफ रिलेशन बिटवीन देम. हम फर्स्ट स्टेटमेंट को अस्यूम करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और जब सेकंड स्टेटमेंट को अस्यूम करते हैं तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं. सो ये इफ एंड ओनली इफ रिलेशन होता है. डियर स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज पर मैं लेट करता हूँ, अस्यूम करता हूँ लेट X together with the topology zeta be a compact space. Dear student, जब मैंने इसे compact space कह दिया है तो immediately सारी की सारी definition हमारे जहन में रिकॉल हो जाती है कि जब भी इसकी कोई ओपन कवरिंग लेंगे तो फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करती होगी. ओके तो हम प्रूव ये करेंगे कि वी विल प्रूव दैट क्या प्रूव करेंगे, एवरी क्लास ऑफ क्लोज्ड सेट्स with empty intersection has a finite subclass with empty intersection. ओके हम ये चीज प्रूव करेंगे. ओके हमें मालूम है कि दिस स्टेटमेंट इज equivalent to finite intersection property. Okay, this statement is equivalent to finite intersection property. जैसा कि मैंने previous remark में आपको explain किया है कि every class of closed sets with empty intersection has a finite subclass with empty intersection. This is equivalent to every class of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection. Okay, this is equivalent to, or we shall prove that every class of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection. Okay, these both the statements are equivalent. So instead of this statement, we shall prove that every class of closed sets with finite intersection property has non-empty intersection. So let f alpha such that alpha belongs to I the indexing set be any class of closed sets. These are closed sets, their complements are open. Class of closed sets in obviously the space X star with finite intersection property.
okay, with finite intersection property. Correct? We prove that डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो हमने क्या प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है अल्फा बिलोंग्स टू आई, जो टोटल इंटरसेक्शन है एफ अल्फा, दिस इज नॉट इक्वल टू फाई. हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज नॉट इक्वल टू फाई. ओके, हमने ये प्रूव करना है. व्हाट इज गिवन? गिवन इज दैट एक्स स्टार इज कॉम्पैक्ट. हमने प्रूव करना था डियर स्टूडेंट्स, एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद empty intersection has a finite subclass with empty intersection. हमने इसके equivalent statement ले लिया है कि we shall prove that every class of closed sets with finite intersection property has a non-empty intersection. हमने assume कर लिया है कि f alpha भी any class of closed sets in extra with finite intersection property. तो prove ये करेंगे फिर ultimately कि total का intersection हमारे पास non-empty आता है. हम इसके कंट्रेरी अस्यूम कर लेते हैं. अस्यूम कंट्रेरी. क्या कंट्रेरी है डियर स्टूडेंट्स? कि हमारे पास ये जो है क्लास ऑफ क्लोज सेट्स एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, बी ए क्लास ऑफ closed sets with finite intersection property, but जो total intersection है अल्फा बिलोंग्स टू आई, जो हमने प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी है एफ अल्फा, हमने अस्यूम कर लिया है कि ये फाई है. ओके ओके. कॉम्पैक्टनेस में हमने बताना ये है कि जब भी हमारे पास क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो तो उसका टोटल इंटरसेक्शन हमारे पास नॉन एम्प्टी आता है. हमने इसके कंट्रेरी अस्यूम किया है कि टोटल इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है बल्कि वो एम्प्टी है. जब ये एम्प्टी है तो डियर स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज, इसका जब मैं दोनों साइडों को कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो फाई का कॉम्प्लीमेंट आई एम राइटिंग फर्स्ट एक्स विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ alpha belongs to I f alpha complement. राइट? आपको पता है कि मैंने यहां पर इस जगह पर डी मॉर्गन लॉ को अप्लाई किया है. यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है और कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल पर चला जाएगा. वेयर एफ अल्फा डैश इज complement of f alpha for each alpha belongs to I. Okay, so this is complement. So this implies, चूंकि इनकी यूनियन x के बराबर है और चूंकि हमारे पास f alpha क्लोज थे तो f alpha complement such that alpha belongs to I is a cover of x by open sets of x. This is an open cover of x. Since, dear students, x is compact, therefore डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शन ओके. क्या उसको नाम दें? एफ अल्फा 1 से उसको नाम देते हैं एफ अल्फा 1. इन्हीं में से रीअरेंजिंग कर रहे हैं. अल्फा 1 कॉम्प्लीमेंट, एफ अल्फा 2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन एंड एफ अल्फा n complement such that what will happen, this x will be equal to union of I is equal to 1 to n f alpha I complement. Okay, why it is so? चूंकि f alpha
इसकी कवरिंग है, इट इज़ एन ओपन कवरिंग, और x गिवन है कि कॉम्पैक्ट है। जब x कॉम्पैक्ट है तो फिर इसकी ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी। लिहाजा वो जो एफ अल्फाज हैं उनमें से वो वाले सेट्स जो कि वापस फाइनाइट यूनियन इसको कवर करती है, उनकी री नंबरिंग की है और उनको कहा है एफ अल्फा 1 डैश, एफ अल्फा 2 डैश, एफ अल्फा n डैश एंड सो ऑन। सो दिस इज ओके। सो अगर मैं बाय टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ साइड्स, we get क्या डियर स्टूडेंट, जब x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वी विल बी गेटिंग फाई, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन विल बी चेंज इनटू इंटरसेक्शन, i इज इक्वल टू 1 to n, और जब इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओरिजिनल के बराबर रह जाएगा f अल्फा i। ओके, सो दिस इज ए फाइनाइट सब क्लास विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। This contradicts the fact, क्या फैक्ट है कि ये जो हमारे पास क्लास थी एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इस फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट करती है। क्या है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? कि हर सब क्लास जो है उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, लेकिन हमने एक सब क्लास ऐसी ढूंढ ली है जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है। डियर स्टूडेंट, ये क्यों ऐसा हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ है कि हमने कंट्रेरी अस्यूम किया था, और चूंकि कंट्रेरी असम्पशन ने हमारे बेसिक पोस्टुलेट को जाके कंट्राडिक्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारी ये जो असम्पशन है कि बी ए क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी बट टोटल इंटरसेक्शन फाई, ये टोटल इंटरसेक्शन फाई की हमारी जो असम्पशन है, दिस इज रॉन्ग। अगर टोटल इंटरसेक्शन फाई की असम्पशन करेक्ट होती तो फिर हमें इसके प्रूफ में अपने हाइपोथेसिस पे कंट्राडिक्शन ना मिलती। हाइपोथेसिस में ये दिया हुआ था डियर स्टूडेंट्स कि एफ अल्फा हैज ए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। हमने कहा कि इसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, प्रूव ये करना था कि टोटल इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। हमने कहा नहीं, ये तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है लेकिन टोटल इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो जिस वक्त हम इस बात को लेकर चले तो फिर हमने ये देखा कि हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई कि फाइनाइट सब कलेक्शन की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट दिस हैज ए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। देयरफॉर इसका मतलब ये है कि our assumption is wrong। तो फिर दुरुस्त क्या है? तो देन दुरुस्त ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू फाई। ओके, चूंकि अगर ये फाई हो तो फिर कंट्राडिक्शन आती है। सो यही हमने प्रूव करना था कि अगर कॉम्पैक्ट है और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लास ऑफ क्लोज सेट, तो फिर टोटल की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, और फिर दिस इज इक्विवेलेंट टू द गिवन स्टेटमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो फॉर द कन्वर्स ऑफ दिस प्रूफ। कन्वर्सली, assume that for every class of closed sets having finite intersection property has a non-empty
इंटरसेक्शन। ये हमने सेकंड स्टेटमेंट जो है उसके इक्विवेलेंट अस्यूम कर ली है, एंड वी विल प्रूव दैट we shall prove that X is compact. Dear student, compact. डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने ये बेसिक लॉजिक डिफाइन किया हुआ है कि जब भी किसी सेट को कॉम्पैक्ट शो करना होगा, किसी स्पेस को कॉम्पैक्ट शो करना होगा, तो हम उसकी ओपन कवरिंग अस्यूम करेंगे और फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढेंगे। सो वी शैल प्रूव दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। फॉर दिस let U alpha belongs to I be an open cover for X. Okay, that is, it means this X is equal to union of alpha belongs to I U alpha. Right, dear students? This implies by taking the complement of both sides, phi is equal to intersection of alpha belongs to I U alpha complement. Okay, by taking complement of both sides. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि x का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा और u अल्फा का कॉम्प्लीमेंट u अल्फा कॉम्प्लीमेंट होगा और यूनियन विल बी चेंज इनटू द इंटरसेक्शन. राइट डियर स्टूडेंट्स? सो वेयर u अल्फा dash such that alpha belongs to I is a class of closed sets with empty intersection. With empty intersection. Right, dear student, as it is shown, this is a class of closed sets with empty intersection. By hypothesis, डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेटमेंट 2 को अस्यूम किया हुआ है. ओके, हमने अस्यूम किया हुआ है और स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर रहे हैं. स्टेटमेंट 2 में क्या है हमारे पास? एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू every class of closed sets with empty intersection has a subclass with empty intersection. Okay, so by चूंकि total class का empty intersection है, so by hypothesis there exists a finite subclass say U alpha 1 dash, U alpha 2 dash, so on U alpha n dash, such that what, अगर टोटल क्लास का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसकी फाइनाइट सब क्लास का इंटरसेक्शन I is equal to 1 to n U alpha I dash, this is equal to phi. Okay, if total class का intersection empty है तो then it has a finite subclass with empty intersection. By taking complement of both side, complement of phi is equal to x, dear students. This is equal to by taking the complement. Okay, मैं एक step additional करता हूँ. I is equal to 1 to n U alpha I complement and whole complement. This is equal to union of I is equal to 1 to n U alpha
I and complement which is equal to this. Okay, so हमने ओरिजिनल कलेक्शन की एक फाइनाइट सब कलेक्शन फाइंड कर ली है जिसकी यूनियन वापस x के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज x इज कॉम्पैक्ट स्पेस. राइट डियर स्टूडेंट्स, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर. तो हमने ओपन कवरिंग ली थी u अल्फा और उसकी एक फाइनाइट सब कवरिंग ढूंढ ली है u अल्फा i जो कि वापस इस x को कवर करती है. दिस प्रूव्स दैट x इज ए कॉम्पैक्ट स्पेस. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. डियर स्टूडेंट, हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने कॉम्पैक्टनेस और फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को लिंक किया है विद इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट. ओके डियर स्टूडेंट, we can restate the last theorem as the following are equivalent in a space x. X is compact. Every class of closed sets having finite intersection property has a non-empty intersection. Okay, dear students, a space x is compact if every basic open cover of x has a finite subcover. Dear students, you remember the definition of a base. ओके हम इसको बीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. बी जो होते हैं वो टा को बिलोंग करते हैं. हमारे पास ये टोपोलॉजी की सब कलेक्शन होती है. ओके, क्या कैसी सब कलेक्शन होती है? ऐसी सब कलेक्शन होती है कि इन सारे बीज का जो यूनियन है वो एक्स के बराबर होता है, एक बात. और जब भी B1 और B2 हम दो बीटा के एलिमेंट्स लें तो इनके इंटरसेक्शन को जो एलिमेंट बिलोंग करता है, हमारे पास एक B3 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बीटा का, सच दैट क्या होता है कि ये एक्सिस B3 को बिलोंग करता है और B3 जो है वो कंटेन करता है B1 इंटरसेक्शन B2 में. डियर स्टूडेंट, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि दिस बीटा इज अ बेस. ओके, फॉर द गिवन टोपोलॉजी. डियर स्टूडेंट, दिस वाज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द बीटा, द बेस. सेकंड ये है कि इफ बीटा इज ए बेस फॉर टा, then every open set can be expressed as union of members of beta. जो भी हम ओपन सेट ने U फॉर ईच U बिलोंगिंग टा, जो टा का एलिमेंट होगा वो ओपन होगा, वो U जो है वो यूनियन ऑफ B होगा जहां पर B जो होंगे वो बिलोंग करते होंगे बीटा को. हर ओपन सेट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जा सके तो देन दिस बीटा इज कॉल्ड बेस. जो बेस के एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको बेसिक ओपन सेट्स कहते हैं, बेसिक ओपन सेट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमें ये कहा गया है कि ए स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी बेसिक ओपन कवर ऑफ एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर. जो भी हम बेसिक ओपन कवर लें उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता हो. जो भी हम बेसिक ओपन कवर लें उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता हो तो फिर वो स्पेस हमारे पास कॉम्पैक्ट होगी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, let G alpha such that alpha belongs to I be an open cover of X, okay, by sets open in X. Then and further beta which is equal to Bj
J belonging some indexing set delta भी हम लिख लेते होते हैं, be the base for ta. Okay, then every G alpha is union of members of beta. Okay, union of members of beta. So that is G alpha is equal to union of Bj for some J belonging delta, right dear students? So this implies ultimately X, which is equal to union of G alpha, okay, alpha belongs to I, is equal to union of Bj, where J belongs to delta, right? So this gives that Bj, J belonging delta, is basic open cover of X. By hypothesis, ये कहता है कि basic open cover of X has a finite subcover. So by hypothesis, there exists finite number of Bj's which covers X. Okay dear students, if these Bj's are finite, तो this implies चूंकि ये Bj's जो हैं they are contained in G alpha, right? They are contained in G alpha because each open set is union of members of Bj. If these Bj's are finite, so this implies there exists a finite class beta dash of Bj's. J belongs to delta, where beta dash is a finite subclass of beta, right dear students? So this gives there exists a finite collection of G alphas, alpha belonging I, which will cover X. So this implies X is compact. This completes the proof. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कोई भी सब स्पेस कॉम्पैक्ट है तो फिर जो भी कवरिंग ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स हम लें उसकी फाइनाइट सब कवरिंग भी एग्जिस्ट करती है एंड कन्वर्सली. फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और हमने देखा कि एवरी क्लास ऑफ क्लोज सेट्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ total class non-empty. So this statement is equivalent to every class of closed sets with empty intersection has a subclass with empty intersection. Dear students, हमने इससे related characterization of compactness find की, जिसमें हमने इस finite intersection property की help से किसी space की compactness को prove किया. Okay, dear students, good luck to you.